SK generation and detections with the practical approach, as well as we can also analyze the signal pattern analysis of amplitude shifting gain. But before that one, I thought we should discuss something regarding your the future research perspective or future career perspective. And as BTech students and as far as the PhD student and MTech students, uh, all have the different mindset, and they have different target to perform as per their target. Okay, so uh, the first I will show some hardware project. Those are related to with the BTech students and MTech and PhD students, right? So I think in March, from March to till now, we all have been suffering from the COVID impact, COVID-19 impact. And in March, there was a challenge. Everywhere we are looking uh, for sanitizing everything, and still we are looking for the daily basis. We are looking for the sanitizing device, right? So in March 2020, we have developed one prototype, and we have also the patent of that product. But due to COVID conditions and for the interest of country, or at the interest of the society, we we have released that patents for everyone. Anyone can sell that project, so that everyone can be benefited, right? So I think when you will search in Google, then you found that my student and myself has developed one prototype for automatic sanitizer machines. Okay, so in today's class, I will give the some mm, provide the some video, so that you will take the some interest how you can proceed the hardware project in your career, or you can contribute something to your society, right? So so first question, the first question is how we can design the hardware project in real time scenario, the first condition. And second one, you all know that how the China, Korea, and Taiwan has dominating in the hardware project, hardware device. Okay, you know that I think you all are aware that in every home, more than 50% of 40% are electronic devices available in your house, nearby your house. Your mom are using 40% of the device, electronic device. You are using more than 50% device. Your father is using more than 40%. So electronic has its own impact, right? Electronics and communication guys have own impact, but due to self belief or platform lacking of the platform, we are not able to produce a good product. But as far the same time, my lab, 5G IoT lab, has developed a lot of product. But yes, this is really not good. We are not due to supports and requirement of the money to launched. But yes, we have now. I'm in the phase. My two groups has already joined as a startup company. One is a group, and one other one is the eSathi. And eSathi is just we have launched that company. So hopefully, for in the future, if students wants to continue and do the best for the country, we can do somehow, right? But IITs and NITs, triple IITs have a better platform by the government also. SMU is far better than some new IITs and NITs. But due to the locations of JNK, we are not able to product to how product will be sold for the company, right? That is the some still we are lacking in that case, but no issue. If we are doing our best, and hopefully future we will produce very soon a lot different types of project and prototype to government of India. So since only studies and theoretical study is not important, so I am just showing some videos to you, so that you can able to
analyze how the students are doing the good work in my lab. So I am showing some my screen, then one by one I will give the highlights. So this is the project related to चरित्र दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. So this the project. This project has been developed in March 2020, and February we have patented also. Since at that time you all are remember that the when everywhere is a lockdown, you are not able to suppose are not goes to outside, and not you have no any electronic component to purchase anything, totally we all are blank at the time in March. I think you know this scenario. So I myself and my students has decided, okay, हम एक क्या करते हैं, जग में बनाते हैं. So हमने एक जग ले लिया था, and after we have installed this ultrasonic sensors, the relay switch, Arduino programming will there, and how we can develop our own automatic sanitizer machine. And when you search in Google and find this automatic machine, SMODU, then you can find that all the details about this project in March 2020. Okay, so first see this project. The second year students, only second year students has developed this project. So you can I thought, and you also understood, there's no difference between IITs and other MITs, college, MITs, IITs. You can do anything at anywhere, but सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, concept अच्छा होना चाहिए, and you have the some motivation. So see how we have developed this project. सबसे बड़ी बात देखना, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने प्लास्टिक नहीं होता है स्ट्रॉ जिससे पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, वो लगाया. हाँ बोलो बेटा. सर विजिबल नहीं है ये प्रोजेक्ट जो आप दिखा रहे हैं. ठीक है. विजिबल नहीं है? नो सर. इसको किसको नहीं दिखाई दे रहा है? अभी तो हटाया मैंने, इससे पहले मैंने शेयर किया था ना. नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा. कौन बोल रहे हो? तोहा मोहम्मद. आपको आप और अंकिता दिख रहा है, प्रोजेक्ट दिख रहा था, मैंने बताया. यस सर. तोहा तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है फिर बेटो, है ना. और चरित्र दिख रहा था क्या? सर आप दिख रहा है, आप दिख रहे हैं. यस सर, यस सर दिख रहा था. और कोई जिसको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना बेटू? यस सर. देखो हमारे पास नहीं था, पाइप नहीं था, तो हमने स्ट्रॉ यूज करके किया है. हमारे पास कुछ डिवाइस नहीं थी ना, सैवलॉन जो बेचता है या या लाइफ वो लाइफ बॉय है, जो भी कंपनी है, वो हमारे पास नहीं था. हमने सिर्फ फिर जग में यूज किया. यहाँ पे हमने एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और ये आर्डिनो नीचे रखा हुआ है, ये रिले मशीन है. तो समझ सकते हो कि यदि आपके पास उस समय जब मार्च में हमारे पास कुछ भी नहीं था, स्टिल वी हैव डेवलप्ड ए लॉट ऑफ जो डिमांड थी उस समय का, उसको हमने डेवलप किया. इन फरवरी में, लास्ट वीक फरवरी में हमने जैसे हमने सुना कि ऐसा ऐसा चल रहा है चाइना में, देन वी हैव डेवलप्ड दैट प्रोजेक्ट, एंड हमने पैटेंट भी फाइल किया, बट ओपन कर दिया उस पैटेंट को बिफोर ऑल. So you think how you can able to design any project and do your project in any way, right? So क्या कर रहा है, हाथ दे रहे हो आप, हाथ दे रहे हो, ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है. नाउ you can understand this prototype is available and everywhere, बहुत सारे जगह पे अवेलेबल है. हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. Yes, this is really low cost project and it's really great for us. Okay. सर इसमें सेंसर कौन सा यूज हुआ है सर? सेंसर यूज हुआ है? ये इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो आपका डिस्टेंस मापता है. जैसे ही आप उस में आएंगे, जैसे कि आप जैसे हाथ दिखाएंगे और उसमें हमने सेट कर सकते हैं आप,
5 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर के अंदर पे आएंगे तो वो क्या करेगा, हमने इसमें क्या किया था थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, मैं तो आपको इंटरेस्ट करने के लिए किया था अभी। तो ये जैसे 5 सेंटीमीटर के पास अल्ट्रासोनिक जैसे आप हाथ देंगे तो वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक में जैसे ऑब्जेक्ट सामने आता है तो डिटेक्ट कर लेता है, राइट। तो वो दोनों जो आपको ये राउंड राउंड दिख रहा है ना, वो डिटेक्ट कर लेता था, और फिर जैसे ही वो सेंसर डिटेक्ट करता था ये आपको फ्लो करता था अंदर से, राइट। मोटर लगा हुआ है तो फ्लो करके आपको दिया, मोटर ऑन हो गया। और हम इसके सेम टाइम पे हमने एक काउंटर भी लगाया था कि कितने बंदे उस ऑफिस में, मान लो कि 25 बंदे हैं और 20 बंदे ने ही सैनिटाइज किया, तो ये भी बता देगा कि 5 बंदे ने नहीं किया, राइट। उसका यदि आप चाहे तो नाम के साथ भी कर सकते हैं, उसके और अपडेट करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। बट हमने ये किया था कि काउंटर भी लगाया था कि इस ऑफिस में कितने बंदे हैं, तो दिखाया वो काउंट करके दिखाया वो कि 50 बंदे हैं, लेकिन अंदर में जो सैनिटाइज करके गए हैं 45 गए हैं। तो ये आपको बता सकता है कि किसने, मतलब कितने बंदे आपके ऑफिस में जो सैनिटाइज करके नहीं जा रहे हैं अंदर। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो डिस्टेंस को मेजर करके बता रहा था। और इधर रिले स्विच है जो, क्योंकि हमें 3 चाहिए था। एक तो अच्छा, हम अब काम कैसे करता था ये, तो हम क्या करते थे, जैसे ही आप घर के गेट के बाहर लगा के रखेंगे, तो जैसे ही आप गेट जैसे ही आप अंदर जाने के लिए करेंगे तो ये, और यदि, हाँ इसमें एक और बहुत अच्छा काम किया था हमने, एक अलार्म लगाया था। यदि आपने बिना सैनिटाइज करके जाने लगेंगे तो एक बहुत तेज अलार्म बजाता था, बहुत तेज अलार्म बजाता था। तो करने का मतलब कि आप यदि सैनिटाइज नहीं करेंगे तो इतना अलार्म बजाएगा कि आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, वापस आके आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ हमने डिस्टेंस रखा था, मान लो बहुत लापरवाह होते हैं, नहीं या नहीं करना, तो ठीक है इशू के, तो हमने रखा था कि यदि 60 सेकेंड तक भी वो नहीं किया, बहुत अलार्म बजने के बाद भी, तो ठीक है, इस नॉर्मल कंडीशन। बिकॉज इंडिया में तो पता ही है तुम्हें कि सबको जब तक मतलब इतना, जब तक फाइन सिस्टम नहीं करेंगे तब तो वो करेंगे नहीं, बोलेंगे ठीक है बढ़ने दो यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। सर इसमें आपने टेम्परेचर सेंसर भी यूज किया सर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए? नो। तो सर एक ऐसा सेंसर यूज कर सकते हैं कि जिससे मतलब कि सर बॉडी का टेम्परेचर भी दे दे और साथ में? हाँ, उसके लिए हमें बताता हूँ, उसके लिए हमने डेवलप किया था थर्मल रेडिएशन मोड, TRM मोड बोलते हैं इसको। थर्मल रेडिएशन मोड किया था कि जैसे कि मैंने वो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी मैंने वो दिखाया नहीं है इसमें, मैं बताता हूँ। उसमें हमने क्या किया था कि जैसे आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो कैमरा जो है ना, वहाँ पे कैमरा नहीं होगा, जो सिंपल कैमरा हो वैसा नहीं लगा रहेगा, वहाँ पे थर्मल कैमरा लगा रहेगा, और थर्मल कैमरा से आपका वो टेम्परेचर लेगा और आपका डेटाबेस से मेजर करेगा, दोनों में मैच करेगा। यदि वो टेम्परेचर उससे ज्यादा है तो हम 3 रीजन में बांटा था। ये मेरा अभी पब्लिश नहीं हुआ इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत चल रही है। हमने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, हमने 3 रीजन दिया था, रेड, उसके बाद पिंक और ग्रीन। ग्रीन है एकदम पूरा ओके है, जाने दो। यदि पिंक है तो उसको रोकना है, बट अलग वे में रोकना है। और यदि रेड है यानी उसको पक्का हॉस्पिटल भेजना है, समझ में बात। तो उस समय जो कंडीशन था, उसके कंडीशन हमने 3 थर्मल रेडिएशन मोड से हमने 3 एक्सट्रैक्ट किए थे वैल्यू। एक बहुत ही टेम्परेचर हाई और उस लेवल का है, उसको हॉस्पिटल जाना है। यदि पिंक रीजन में आ रहा है, वो एक सिस्टम है, रेड, पिंक और ग्रीन। यदि रेड में जा रहा है हॉस्पिटल जाना है, पिंक में है तो घर में क्वारंटाइन होना है, ग्रीन है उसको जाने दो, उसको ठप्पा भी मत मारो, जाने दो। और यदि पिंक और वो है तो 2 लेवल डिफरेंट लेवल का आपको स्टैंप लगाना है। ऐसा हमने किया हुआ है, आपको दिखा दूंगा, हमने सबमिट किया हुआ है कहीं पे, इसलिए अभी हमने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। सर मेरा कहने का मतलब सर ये है कि एक ही डिवाइस में हम सर 2 सेंसर यूज कर सकते हैं, या ये कर लें, या एक ऐसा कोई सेंसर यूज हो सकता है इसमें टेम्परेचर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर दोनों आता है? कर सकते हैं। क्या होता है कि जितना ज्यादा आप सेंसर और जितने डिवाइस यूज करेंगे ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या होता है, पावर बैकअप इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा नहीं है कि हर जगह, तुम यहाँ तो है, गांव में थोड़ी पावर है बेटा, है ना। वहां तो हमें सिंपल इंस्टॉल होना चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड होना चाहिए। चलो इतने मतलब बैटरी ऑपरेटेड भी है तो एक घंटा चार्ज कर लिया तो 5 घंटा 6 घंटा चल जाए, है ना। हम जो कोई भी डिवाइस डेवलप करते हैं, हमेशा याद रखना, हम पूरे वर्ल्ड के लिए डेवलप करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं करते। यस सर। जैसे आप गांव में हो, गांव में पता है 4 घंटा लाइट रहता है, तो 4 घंटे में इतना चार्ज हो जाए कि पूरा चल जाए। यदि आप मोर देन 1 2 3 4 सेंसर लगाओ तो कंपेसिटी भी बढ़ेगी और प्लस पावर बैकअप भी ज्यादा लगेगा। यस तो और कुछ नहीं है, बहुत इजी है, दिखने में कितना इजी लग रहा है, देख रहे हो। यस सर। तो दिस इज वन प्रोजेक्ट। अब सेकेंड प्रोजेक्ट बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और तो सेम एक बार मैंने टाइम मिला था मुझे, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट देख रहा था
और उसमें ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जो जितने भी एप्पल हैं या MI रिस्ट बैंड देखा है। यस सर। हाँ, तो मेरे माइंड में एक दिन आया ऐसे ही कि यार ये एमटेक प्रोजेक्ट किया हुआ है, एमटेक प्रोजेक्ट डेवलप किया है हमने। तो उसमें हमने हमने सोचा कि क्या ये कैसे काउंट करता होगा, कैसे हाउ द पल्स हैव बीन काउंटेड एंड कैसे से वेरिएशन हो रहा है, तो काउंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसमें एरर भी बहुत है। So finally, we have developed one prototype and found that how we can remove the error also, right? तो जितने भी एप्पल रिस्ट बैंड है या MI बैंड है, सब इसी फेनोमेना पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर वो करेंगे। दिख रहा है आप लोग को सबको स्क्रीन? यस सर। रोल नंबर 1। Yes, sir. फिर से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। केस 1 मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक पेशेंट है जिसको मॉनिटर कर रहा हूँ मैं कि उसका हेल्थ मॉनिटर कैसा है, और मतलब कितना वो कंडीशन में अच्छा है, खराब है, जो भी है। तो किसी भी पेशेंट का बेटा म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट हो तो प्लीज म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। सो कोई भी पेशेंट जो होता है वो 3 कंडीशन में होता है, या तो बेड पे लाइंग होता है, या व्हील चेयर में बैठा रहता है, या वो सही हो गया तो वॉक करेगा और पार्क में घूमेगा, जैसा भी। हमें तीनों कंडीशन को मॉनिटर करना है, तो देखना हम कैसे मॉनिटर करेंगे। एंड मेरे लैब में कभी आओगे तो यू कैन सी एवरीवेयर द प्रोजेक्ट, हार्डवेयर प्रोजेक्ट, बहुत चीजें मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको अभी आज, जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट लगे कि माई लैब, आई थिंक दूसरे लैब का मुझे नहीं मालूम, बट IoT लैब इज फार बेटर देन एनी IIT लैब। कोई भी IIT लैब में आप जाओगे, उसे फार मैं चैलेंज करता हूँ, दिस इज माई चैलेंज। सो एनी लैब, और कोई भी टीचर भी मानेंगे वो इस बात को, क्योंकि एवरीवन इज नोइंग कि हमारा जो IoT और 5G में रिसर्च है, वो मतलब किसी भी IIT से अच्छा है। ये दिस इज द रियलिटी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई हैव द रिकॉर्डिंग आल्सो, सो दिस इज द रियलिटी, because our students perform everywhere as far as किसी भी लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे IITU लेवल पे, since I have also received the Young Scientist Award in International Convention in IITU, I am the most popular author in the entire world। आपने कभी पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है, प्लीज सर्च आउट। 5G में मेरा पेपर सबसे पॉपुलर है। अब आपने शायद प्रोफाइल मेरा देखा ही नहीं, देखा कभी, टाइम मिलेगा तो जस्ट व्यू दैट। ओके, सो इट्स ओके, आगे चलते हैं। Again, the constant performance is the case 1 study। ये था केस 1। ओके, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, केस 2। केस 1 and the patient on the lying state। ओके, ये सेम है, एक मिनट। That is variations, the constant performance just is the case 1 study। I think you have already joined my case 2। फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। सबने तो चैनल ज्वाइन कर लियो ना, चैनल मेरे चैनल पे है, यू कैन व्यू दैट आल्सो। बट ठीक है, यहाँ पे देख अब क्या परसेंट एक्सटेंड हो रहा है। नहीं अभी स्टैंडिंग से स्टैंडिंग। यू कैन देखो फ्लक्चुएशन हो गया बहुत तेज। कांस्टेंट आफ्टर द कांस्टेंट देयर इज अ हाई फ्लक्चुएशन। नहीं अभी नहीं, अभी पूरा 100 तक जाने दीजिए। Now
case 3. Sir, walk and move your hand position also. Back. Now you can see here the spikes will be here when there is a movement in the walking conditions. Both hand sensor and foot sensors, both are in mobile conditions. Then spikes will appear. So first, smooth, case 1, case 2, fluctuation, somehow fluctuation but smooth, and third one is high fluctuation conditions. So to optimize the power, we are able to judge in case 1 the less power is required, case 2 higher as compared to the case 1, and case 3 a lot of fluctuation is there. So our requirement energy efficiency algorithm is very high requirement. So our proposed work can optimize these fluctuations and overcome the requirement of power. And this case study, all these cases will be aligned with the energy efficient narrowband IoT. Thank you. Case 2. So 1%. So hopefully you have able to see that video. Ankita, have you gone through the video? Yes, sir. Yeah. So this is not other than other lab. This is the here 5G IoT lab only, and we have done. सर ये जो ये मतलब हमने वो देखा था उसमें ग्राफ में जो 3 लाइन थी वो सर ये क्लाउड को भेजेगा डेटा। मतलब मैं अभी तो पूछ रहा हूँ कि आपको दिख रहा है ना वीडियो। सो क्या होता है, कोई भी पेशेंट्स है तो वो क्या होता है हॉस्पिटल में होता है, जब बहुत कंडीशन खराब होता है तो वो लाइंग इन द बेड होता है, राइट। दूसरा यदि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, लेकिन व्हील चेयर पे रखते हैं, या घर पे भी रखोगे तो आप उनको बैठा के रखोगे, लेटा के या बैठा के रखोगे। बट यदि कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है तो उनको आप पार्क ले जाते हैं, घूमते हैं और थोड़ा आगे पीछे करते हैं। सो ऑल दीज 3 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाटा को लेना और प्रोजेक्ट करना, राइट। मुझे तो नहीं आता था, मुझे बहुत टाइम लगा, बोलना बहुत ईजी है। सो फेज द डेटा, how how can interface with the ThingSpeak and upload on the projector, and you can see, aggregate the data, and after the aggregations upload on the cloud for the all the type of processing. And cloud is nothing but that you can get that data and do the analysis with on the form of x and y axis, and what are the values are there, what are the threshold value, if that value is under threshold, over threshold, okay. So on the basis of that data you can compare कि क्या होता है चाइनीज में और एप्पल में भी प्रॉब्लम है ये कि आप मूव भी करोगे ना हैंड तो लगेगा वो स्टेप्स काउंट करने लगेगा अरे मैं 5000 स्टेप चल दिया हूँ, ऐसा होता नहीं है। उसमें से बहुत सारे एरर्स होते हैं, जब आप मूव करते हो हैंड्स को तो भी काउंट्स कर लेता है स्टेप्स को। तभी देखना, यदि आप किसी ने बैंड खरीदा हो तो आप अभी करके देख लेना। So if you move your gesture like this, so that means that will not produce your actual value. So from हमने ऐसा proposal किया था कि how we can remove that type of error. तो हमने कुछ थ्रेशोल्ड सेट किए थे कि नहीं, इस पोजीशन पे जब आपका पाँव चलेगा तभी वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकता है, तभी वो काउंट करे। तो सबसे पहले एरर आप रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड और प्रपोजल के थ्रू। यस, तो क्वेश्चन है कि द चरित हैज asked the questions कि sir how we can able to analyze. So no issue. First you have captured the data. That captured data is upload on any database, cloud क्या कहीं भी database पे upload करते हैं आप, and after that आप उसको फॉर्मेट होता है, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, राइट। तो उस प्रोटोकॉल के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और ग्राफिकल व्यू में एनालाइज करते हैं वाई और एक्स एक्सिस पे पुट अप करके कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। जब वो लेटा हुआ था तो ऐसा था, जब वो बैठा हुआ था तो ऐसा था ग्राफ,
और जब चलने लगा था तो सबसे ऊपर था, यानी थ्रेशोल्ड के कितना ऊपर नीचे है, दैट इज द रियली इम्पोर्टेंट, राइट? सो Charitra, yes, we will aggregate the data, capture the data, and process on the cloud, and plot the graphical analysis. On the basis of graphical analysis, we have find the threshold कि क्या threshold होना चाहिए जब वो काउंट हो, और कैसा करें कि पावर कम से कम लगे। अदरवाइज क्या होता है, जिसके पास किसी ने बैंड खरीदा होगा ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका बैटरी लाइफ टाइम। बैटरी लाइफ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने यही सोचा था, मैंने जब मैं, और क्या होता है ना, जब आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो खरीद लो। मैं तोड़ फोड़ के सब देखा उसमें कि क्या है, क्या चीज से करती हैं उसमें। तो हमने देखा कि यार यार ये तो रॉन्ग डेटा देता है, पहला। दूसरा, बैटरी लाइफ टाइम कम है, तो हाउ कैन इंक्रीज। सो आईओटी में नेरो बैंड आईओटी जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आप कभी पता नहीं, मैं अभी कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन, बट आई हैव गिवन a lot of concept to the entire world। जो 5G का आर्किटेक्चर है वो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था। जो ये नोमा का कॉन्सेप्ट है, उसमें MIC मल्टीपल इंटरफेरेंस कैंसलेशन का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दिया था पूरे वर्ल्ड को। एंड करेंटली ऑल आर वेरी सक्सीड। कौन कौन से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए 5G में, वो बहुत सारी चीजें मैंने दी हैं। बट ये ओके, यू आर इन जस्ट पास आउट फ्रॉम बीटेक, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि यस सर ने कुछ काम किया है इस फील्ड में। ओके चरित्र, सो हाउ यू अंडरस्टूड, या कुछ और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। यस सर, मैंने आज आर्टिकल भी पढ़ा था सर इंडियन एक्सप्रेस में सर। इसमें बता रहा था कि फ्यूचर सर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का कैसे आगे मतलब कंपनीज एक्सप्लोर होंगी आगे। मतलब सर ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी, यहाँ पे अभी अगर छोटा MSME, अगर हम जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर मुझे अगर मतलब कई लोगों का डाटा, और मैं उसको अगर डाटा किसी डॉक्टर से भी कनेक्ट कर देता हूँ और वो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है, तो सर इस तरह का प्लेटफॉर्म से फ्यूचर में बनने वाला है। एक मेडिसिन का डॉक्टर लेना है, एक गाइनो लेना है, एक मतलब ब्रेन वाला लेना है, जिसको बोलते हैं न्यू सर्जन बोलते हैं, मतलब बहुत सारे 10-15 क्वालिटी का डॉक्टर ले लो, अच्छी क्वालिटी का, और उनको पेमेंट करो, टाइम फिक्स कर लो। अपना एक एप्स बनाया है, देखा होगा बहुत सारे ऐड आ रहे हैं आजकल। जब मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट इज माय फेवरेट, तो मैं जब देखता रहता हूँ तो देखता रहता हूँ कि अरे मतलब हम वी हैव डन और वी आर डूइंग, बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास फैब्रिकेशन लैब नहीं है या कोई खरीदने वाला नहीं है। और मेरे ऑलरेडी आई हैव फाइल मोर देन 10 पेटेंट्स, उसमें से 7-8 पेटेंट्स ऑलरेडी प्रोडक्ट बना चुका हूं मैं, बट मार्केट में लेने वाला होना चाहिए। जो अभी मैं, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे इन्विटेशन भी है, बहुत पर्सनल लैब से भी इन्विटेशन है। यही एक गैप है हमारे यहाँ। और नो डाउट दिस गवर्नमेंट विल डू समथिंग, बिकॉज अभी चाइना और के कारण हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि नहीं, अब हम उन पर बिलीव ना करें, हम अपना फैब्रिकेशन लैब बनाएं, हम अपने मार्केट को। और सबसे बड़ा इंडस्ट्री मैं तो करने वाला हूँ, पता नहीं, मेरे अंदर 2 स्टार्टअप हैं। एक स्टार्टअप को मैंने इस साथी को बोला है कि वी विल डू समथिंग फॉर टॉयज के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। Electronic toys is a big market, and if you have the good concept, you can, you know, different types of design of toys। मतलब करने का मतलब ये है कि मैं आज ये क्लास सिर्फ इसलिए रखना रहा हूँ कि सिर्फ हम पढ़ के क्या करेंगे ना, सिर्फ इसके पढ़ लें या कोई भी और भी पढ़ लें। मेरा एरिया सर इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ ना, जैसे सर आप कह रहे हैं आपका स्टार्टअप आपने एस्टेब्लिश कर दिया, तो सर उसमें ऐसा होता है ना कि सर दोनों साइड से विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। अब ये छोटे जैसे बैंगलोर जैसे शहर में तो सर ये बैंगलोर मुंबई में तो सर एस्टेब्लिश हो जाएगा। जो छोटे शहर हैं जैसे यहाँ पे अभी जो मतलब कि टायर टू सिटी लखनऊ में होगी सर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप 500 रुपए देते हैं एक सिंपल एडवाइस का, अगर आप उससे कम में कोई ऐसा टूल्स और वो वर्क कर जाएगा तो वो तो अपने आप मार्केटेड होते जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि आप क्या करो, सिंपल एक डेटाबेस FAQ का बना लो। FAQ जैसे अभी मालूम है सबको कि कोविड का टाइम है, सो एक FAQ का क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर से बना लो। जो क्वेश्चन वहां से मतलब कोई पेशेंट पूछेगा
और वैलिड मतलब अच्छे डॉक्टर के लेवल पे आप मतलब सिर्फ 50 रुपया 100 रुपये चार्ज कर रहे हो। जैसे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं गूगल सर्च कर सकता हूँ, पता है मुझे कि अभी गला खराब है तो एजिथ्रोमाइसिन हमें पेशेंट को देना है। अभी सब जगह वही बोल रहे हैं। अभी बोल रहे हैं क्या कि नहीं, मुझे दोनों तरह का कि नहीं, मुझे मतलब कोविड का कुछ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप काढ़ा बनाओ। काढ़ा तो पता ठीक है, लेकिन काढ़ा में कंटेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, ये आप बता दोगे मतलब नो एवरीवन इज हैप्पी। 100 रुपए देने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने इस तरह का सोल्यूशन दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ एफएक्यू दे दिया, मतलब बोलने के हिसाब से वो बोलेगा। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, उसमें ऑन करते हो और पूछते हो, वो अपने आप आंसर देता है। वैसे आप एक अपना एक सिस्टम बना सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि जिसके पास बहुत पैसे हैं इट्स ओके, दे विल डायरेक्टली कॉल टू डॉक्टर और सब कुछ आ सकते हैं। मैं अंबानी वानी का नहीं बोल सकता, बट एज एज फार एज जो गांव में है या छोटे लेवल पे हैं, वो उनके लिए 50 रुपए 50 50 रुपीज 100 रुपीज में हम कोई सॉल्यूशन दें, इट्स रियली गुड। So yes, you can do the such type of a small startup to provide the medical support like the bigger company. Yes, you can. करने का मतलब ये था कि यू आर इन एमटेक, सो आपको भी थोड़ा नो जो भगवान ने सबको दिया है कुछ, तो उसका यूज करना है एंड प्रोवाइड सम सॉल्यूशन टू द कंट्री, सोसाइटी, राइट। सो करने का मतलब है कि और सिर्फ ये नहीं, हार्डवेयर प्रोजेक्ट बना के आप कुछ प्रपोजल दे सकते हैं। हमने सिंपल उस समय पे प्रपोजल दिया था, जो बहुत अच्छा था प्रपोजल, बट अभी तक वो नहीं आ पाया है। इट्स ओके, कभी टाइम लगता है, कभी ये होता है। बट हमने एक ऑप्टिकल में मैंने बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया था, TWDM और WDM का कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जो 5G के बैकबोन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। कहने मतलब यह है कि आप जो बेसिक चीजें पढ़ते हैं उसका यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अंकिता, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आज? Yes, sir. एंड जसप्रीत कौर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि Yes, आप, sir. हाँ म्यूट कर लो। मेरा ये कहना है कि आपके माइंड में जो भी यूनिकनेस है, और क्योंकि एमटेक में आपको रिसर्च करना है, राइट, कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाना है, तो अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो क्या मुझे गेट के लिए एक बार और जाना है, ये मुझे IAS करना है। मुझे अभी पता चला होगा आप सबको कि हमारे एक स्टूडेंट्स ने 8th रैंक लाया है, सबको पता होगा। केस में अभी रिजल्ट आया है परसों तरसों, तो अक्षय ने 8 रैंक लाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक टारगेट पूरा फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उसमें कोई हेल्प चाहिए तो लेट अस नो, बिकॉज एज ए टीचर हम टीचर इसीलिए हैं कि जितना हमें आता है और जितना हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना एक्सपीरियंस है उसमें आप आपको बता पाए। और मैं लगभग सारी कंट्रियां मतलब घूम चुका हूँ, मैं बहुत सारे लैब गया हूँ। एज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आजकल कि आप क्या हैं, बट इतने एज में भी मैं बहुत सारे लैब जा चुका हूँ, बहुत सारी कंट्री जा चुका हूँ, देख चुका हूँ कि क्या है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि चाइना के में मैंने एक बहुत ऑब्जर्व किया कि आप क्या करो, यहाँ तो जमीन के लिए मरते हैं, वहां पे तो जमीन में नहीं रख सकते आप जितना भी आपका लैंड है वो ले लेगी गवर्नमेंट, और वहां पे वो सिर्फ मतलब ना डेवलपमेंट का करेगी, लेकिन हाँ आपको वो खुद से बिल्डिंग बनाएंगे और आपको उसी लैंड के हिसाब से जो भी आपका मनी रहा होगा उस हिसाब से आपको फ्लैट दे देंगे, 1 फ्लैट 2 फ्लैट जो भी है। और बहुत मतलब उन्होंने क्या किया ना, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया है। मतलब सड़क बनाया है, ऐसा सड़क की आप सोच ही नहीं सकते, 4 सड़क आ जाए ऐसा, राइट। तो मतलब बहुत फ्यूचर परस्पेक्टिव से किया है। और हम कम नहीं है उनसे, हम बहुत आगे हैं उनसे, बट यही है मतलब पर्सपेक्टिव जो है ना, जो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है, दैट इज द डिफरेंस। और उनसे लाख गुना अच्छा है हमारा माइंडसेट, उनसे लाख गुना अच्छा है हमारा नॉलेज, बट जो उनका लैब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, जो जैसे मैंने कुछ बनाया, मैं मोबाइल बना लूंगा, खरीदेगा कौन? हमारे पास कोई नहीं खरीदेगा। वहाँ पे सेटअप है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट बना है उसको खरीदने के लिए बहुत सारा मार्केट है, और कंपनी आपको ले जाएंगी, आपकी सामान को खरीदेगी। पेटेंट मतलब का फायदा भी है कि आप पेटेंट है तो ठीक है, आपको इतना % मिलेगा। एक बहुत बड़ा पेटेंट है, मैं बताता हूँ। आपने हीरो होंडा का म्यूट कर लो, फिर मैं पूछूंगा। जो एक हीरो होंडा का नाम सबने सुना होगा। हीरो होंडा जिसने डिजाइन किया था,
वो अभी भी मुझे लग रहा है कि टॉप 100 में सबसे धनी बंदा होगा। मर गया वो, अपने तो है नहीं, उसके बेटा, उसका पोता, ये सब सब लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? उतना अच्छा डिजाइन था वो कि अभी भी यदि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, तो होंडा का जो इंजन है दैट बिहेव्स एज अ जनरेटर, राइट। आप उसका यूज कर सकते हैं जनरेटर में, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में, डीजल भी डाल के, यहाँ तक मिट्टी तेल भी डाल के, वो ना कच्चा तेल डाल के भी कर चला देते हैं। तो समझ सकते हो कि हाउ दे हैव डिजाइन। उसका ऐसा पैटर्न था कि किसी ने भी बना नहीं पाया उसको, राइट। तो दैट इज, मतलब काम करो ऐसा कि लगे, मतलब ये नहीं कि नाम के लिए सिर्फ, वो एक्चुअली इंडस्ट्री में इतना डेवलप रहा कि हीरो होंडा का कोई स्टेब्लिश नाम ही है उसका ना, होंडा नाम सुना होगा, हीरो होंडा जनरेटर ना खींचने वाला होता था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। सो दैट टाइप ऑफ प्रोटोटाइप दे हैव डेवलप्ड। हाँ चलिए, यू वांट टू आस्क समथिंग, टेल मी। सर मैंने ये पढ़ा है कि शेंजन के बारे में, चाइना में सर एक जगह शेंजन है, वहाँ पे सर 90% जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है सर, और उनके पास बहुत मतलब हुआवे ये सब कंपनी। सर इसके बारे में कुछ बताइए सर, वहाँ का जो कल्चर शेंजन वाला। तो मैं शंघाई भी गया हूँ, मैं वांचू गया हूँ, मैं डालियान में रहा हूँ बहुत दिनों तक। डालियान में मेन उनका यूनिवर्सिटी है, वहाँ में रहा हूँ। मैं कोरिया गया हूँ, साउथ कोरिया, वहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है IUST, वहाँ पे गया हूँ मैं। सो KUST है, कोरियन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है। मैं ऑकलैंड गया हूँ, मैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं देखा हूँ कि क्या है। सो कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर गया हूँ, मैं NTU गया हूँ, मैं देखा हूँ कि NTU में क्या सिनेरियो है। एंड यू कैन सी माय प्रोफाइल आल्सो, आई हैव विजिटेड ऑल दिस देयर। एंड मुझे 9 टाइम्स फेलोशिप मिला है, और कभी किसी से पैसा नहीं लिया है मैंने, ना यूनिवर्सिटी से लिया है और ना अपना पैसा खर्च किया है। मुझे वहाँ के गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे और मैं वहाँ पे गया, मुझे एपान फेलोशिप मिला हुआ है, मैं वहाँ का मेन मेंबर हूँ। जो भी आप ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। सो कहने मतलब ये है कि जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं वही बता रहा हूँ फिर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना। SMU का बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी क्यों बन पाई, मैं जैसा पर्सपेक्टिव देख पा रहा हूँ। नहीं बोलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आई हैव ऑफर मैनी, मैं IIIT रायपुर में भी मुझे ऑफर मिला था, और भी जगह से ऑफर है। बट यहाँ पे वर्क कल्चर मुझे क्यों अच्छा लगा पता है? एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब किसी चीज को करने के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब आगे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कितना क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी चीज को डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हाँ, तो क्या हुआ वहां पे उन्होंने क्या किया, सेक्टर बांट दिया है सब कुछ कि इस एरिया में ये, इस एरिया में ये, इस एरिया में ये, और पूरा फुल फ्लेक्सिबल। और उनका स्किल्स इतना अच्छा नहीं था, स्किल्स उनके जो लेबर्स थे ना, स्किल्स अच्छा नहीं था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने फिर इस मतलब लेबर्स को कैप्चराइज किया और स्किल्स डेवलप किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक में काम करेगा, ये इसमें काम करेगा, ये इसमें काम करेगा, ये PPE किट बनाएगा, ये मतलब हर तरह का स्किल्स डेवलप किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अभी तुम कुछ फैक्ट्री बनाना चाहो, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आई एम नॉट हेयर फॉर द पॉलिटिक्स फॉर एनीथिंग, बट ये तुम अभी पता चला कि तुम्हारा घर आ गया उस लैंड के अंदर, ठीक है, तो क्या हम दे, या मेरा आ गया, क्या मैं हम दूंगा लैंड बनाने के लिए गवर्नमेंट को? नो सर, नहीं, कभी नहीं दोगे। और सुनोगे आधा जिंदगी इंडिया का और किसी भी कंट्री का इसी में चला गया। वहां पे ये नहीं है, ओन लैंड पॉलिसी नहीं है आपका, ठीक है, आप लैंड आ रहा है, वी विल गिव द फ्लैट, और जो भी आपको चाहिए होगा वी विल गिव प्रोवाइड, राइट। तो इससे क्या हुआ कि उनको फुल फ्लेक्सिबल मिला, राइट। ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा ही नहीं है, वहां पे बहुत कुछ बुरा भी है, मतलब जो अच्छा है वो हम बात करेंगे जिससे कि हम भी अच्छा करेंगे, राइट। हमसे बहुत नीचे स्टैंडर्ड है उनका, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एज फार द कंपनी जो बाहर से आए हैं कंपनी, उनको प्लेटफॉर्म देना, दैट इज उसके बाद स्किल्स डेवलप करके अपने बंदे को वहां पर सेट करना, वो बहुत रहा। और हमारा भी टाइम आएगा अभी, नाउ द टाइम केम कि अब इंडिया विल लीड इन दैट सेक्टर आल्सो। इनिशियली आपको पता होगा चाइना कोई पोजीशन नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, पढ़ लो, ज्यादा दिन का नहीं बोल रहा हूँ, 40 इयर्स पहले कुछ नहीं था उनका GDP और हमारे GDP कोई अंतर नहीं था, राइट। और जबकि अमाउंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ का 10 अपने यहाँ का 10 रुपीज वहाँ का 1 रुपीज के बराबर है, तो 10 टाइम्स ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। जबकि पहले हम बहुत अच्छा था हमारा लेवल, बट हम बीच में बहुत दिन गैप रहे,
अब हम ट्राई कर रहे हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए तो 40 साल से काम कर रहे हैं ना, अभी हमें करना पड़ेगा। बट हाँ, एज फार एज द स्किल कंसर्न, एज फार एज द टेक्नोलॉजी कंसर्न, हम बहुत अच्छे हैं। बट यस, 5G जैसे हवाई नाम सुना होगा, उसने हाईजेक कर लिया, मतलब पूरे टेक्नोलॉजी को हाईजेक कर लिया उसने, और पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहा है। बट अच्छा है कि 5G इंस्टॉल नहीं हो पाई, अच्छा हुआ। मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए नहीं, अच्छा हुआ कि अभी तक नहीं डिप्लॉय हो पाया, अदरवाइज दे आर डूइंग द डोमिनेटिंग, राइट। सो फ्यूचर में अब अभी कंपनी आ रही है, इंडियन में भी है, चल रहा है। बट वहाँ का सिस्टम का थोड़ा सा ये है कि कुछ मतलब मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट के पास भी जाता है, यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है कि आपने कुछ अर्न कर दिया तो आप टैक्स भी नहीं देना चाहते, तो बाकी का तो छोड़ो, बाकी तो हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आप सिंपल देखो ना, आपके बाहर में यदि कोई एक बहुत बड़ा ये है जहां से ग्रोसरी लेते होगे, उसकी इनकम कितनी है पता नहीं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट अब देखो क्या सब कोई टैक्स दे पाते हैं, नहीं देते। तो नहीं, वहां पे ऐसा नहीं है, आपको तो उम्र कैद हो जाएगी और फांसी भी हो जाएगी यदि आप टैक्स यदि आप नहीं देते हैं। सो दैट इज द लेवल। बट ऑकलैंड है, स्विट्जरलैंड है, जो वहां पे हैप्पीनेस फैक्टर बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां की डेंसिटी इतनी कम है। ऑकलैंड में मैं गया तो देखा कि जो आपके मतलब ना, कोई किसी मतलब फोर्सफुली किसी को काम नहीं करना है, सब कुछ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, खाना फ्री है भाई, खाना फ्री है। यदि आप काम नहीं करते कोई बात नहीं, एक फ्रिज रखी हुई है, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, आप जाइए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रखेगा या जो भी रख रहा, मुझे इतना नहीं पता था गवर्नमेंट रख रही है, बट वहां से जाइए, निकालिए और अपना खाना खाइए, कोई मतलब नहीं है आप काम करें ना करें। सो बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और वहाँ पे मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है, अपना 46 या 48 रुपीज के बराबर है। मुझे हर कंट्री का मालूम है क्योंकि मैंने अपने इंडियन रुपीज कन्वर्ट किया है, तो मुझे याद है, मैंने कभी सर्च वर्च नहीं किया, जो एक्चुअल वैल्यू थी उस समय की वो मुझे याद है, शायद 48 या 50 के आसपास। सो करने मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आज पहले फर्स्ट पार्ट में ये शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज द रियलिटी ऑफ नो। और आपका भी टाइम है, राइट। हमने तो जो करना था कर लिया है, कर रहे हैं, और भी मेहनत करेंगे। अभी मुझे जो सोचता हूँ कि कुछ चीजें बची हैं जिसको बस एक ही गैप है, अदरवाइज बहुत सारे प्रोडक्ट में अभी मार्केट में आ गया रहता हमारा भी। बट इट्स ओके, आप लोग को और भी अच्छा करना है, तो ध्यान रखिए गेट पे, IES पे अपना कैरियर तो करना ही है। कैरियर मिलने के बाद लेकिन क्या होता है ना, हम इंडियन में एक बहुत बड़ी वो है, बस जॉब मिल जाए बस, और कुछ नहीं, मतलब कुछ देखना नहीं है, बस जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो चलो इतना जॉब मिल जाए कि हम निश्चिंत रहें। हम कभी भी नहीं सोचते कि हम जॉब क्रिएटर बने, राइट। कभी नहीं सोचते हैं कि मेरी कंपनी हो छोटी सी भी, जो 5 बंदे को, सिर्फ 5 बंदे को जॉब दे पाए, कभी। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। मैं नहीं कर पाया, झूठ क्या बोलूं, मैं नहीं, जब नहीं कर पाया, हमारे माइंडसेट में वही था, लेकिन अभी कम से कम मैंने 2 स्टार्टअप कंपनी खुलवा दिया, और ये मेरा अचीवमेंट है। और अभी तक वो बच्चे को प्लेसमेंट हुआ था, फिर भी वो प्लेसमेंट में नहीं गया और स्टार्टअप चला रहा है। ठीक है, बहुत पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन पता नहीं कब टर्न अराउंड हो जाए, वी डोंट नो। तो ओके, आज और भी बहुत सारे रियल टाइम दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे रोबोट डेवलप किए हुए हैं, मतलब एलेक्सा, जो आप अमेजन में वो देखते हैं कि ये बता दो, ये कर दो, वो सब हमने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने ये सब सारे डेवलपमेंट हमारे कभी लैब में आप आएंगे, व्हेन यू विल ज्वाइन, देन आई विल शो। और अदरवाइज मैं अभी वो भी दिखा दूंगा कंटिन्यूस लेक्चर में। मैं हर लेक्चर में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाता जाऊंगा जो हमारे प्रोडक्ट हैं हमारे क्लास में, मतलब हमारे लैब में, IIoT लैब में। ओके, तो होपफुली अब हम थोड़ा अगले सेक्शन में चलते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें। सो इस ओके, चलिए तो आगे चलें। यस सर। और सब सो तो नहीं गए भाई? साइमा रसीद, यस सर। वीडियो देखा, मेरी बातें सुनाई दी आपको? यस सर, यस सर। ओके, सो नाउ अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आज की क्लास के लिए। सिर्फ 15 मिनट क्लास लूंगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आप ये थ्योरेटिकल एनालिसिस करके कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस होना चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, क्या करना है नहीं करना है, राइट। ओके, सो आगे चलता हूँ मैं। सो एप्टीट्यूड स्प्रिंग का जो हमारा एजेंडा था, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट एजेंडा।
हाउ द एम्पलीट्यूड सिंकिंग हैविंग मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है वो मैंने बता दिया था, वो भी सही है। तो मैं कहाँ तक आ गया था, कॉन्स्टलेशन डायग्राम तक आ चुका था मैं, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी फाइंड आउट किया था, पता है सबको? यस सर। शेफाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तक कर लिया था मैंने। जी सर। ओके, सो नाउ नाउ राइट डाउन, आज का एजेंडा लिख लो। जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एएसके सिग्नल, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एएसके सिग्नल। आप एएसके सिग्नल आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, तो उसका एजेंडा लिख लो, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एएसके सिग्नल, राइट। तो कौन है, एक कमनदीप, कमनदीप है कोई ना? हाँ कमनदीप है ना कोई, आप रोल नंबर 8 नहीं, हाँ कमनदीप कौर, रोल नंबर 4 अनम्यूट करो, रोल नंबर 4। अच्छा आपका माइक ठीक नहीं हुआ अभी तक, कैसे इंटरेक्शन करेंगे बेटा? चलो, नहीं बेटा प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा ना। हाउ आई कैन नो कि आपको क्या बनता है नहीं बनता है ना? सो तूहा मोहम्मद, तूहा मोहम्मद रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 तूहा मोहम्मद। रोल रोल नंबर 15 फरहा खान, रोल नंबर 15, व्हाट इज दिस, रोल नंबर 15 साइमा रशीद, रोल नंबर 11। यस सर। अच्छा ये बताओ कि कोई सिग्नल को जनरेट करने के बाद, जनरेट करना है मुझे और फिर रिसीव करना है, तो यस सर। मॉड्यूलेशन में कैसे करते थे हम, क्या क्या लेते थे? सर इसमें हम क्या लेंगे कि हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लेंगे, उसमें हम एक हमारा होगा ये वाली जो मतलब हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि बाइनरी फॉर्म में है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या बोलते हैं और कौन सा सिग्नल बोलते हैं? सर किस सिग्नल को? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को और क्या बोलते हैं बेटे? सर मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल लिया और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सर जो हमारा कैरियर होगा, साइनोसाइडल कैरियर। वेरी गुड। और रिसीवर इन पे क्या करेंगे? सर डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में कैसे करेंगे? डीमॉड्यूलेशन में क्या आएगा, वहां पे भी क्या लगाते हैं? सर डीमॉड्यूलेटर लगाएंगे। यस सर, डीमॉड्यूलेटर एक शायद वेरी गुड। और डीमॉड्यूलेटर में क्या लगेगा, यहाँ पे कैरियर, मान लो यहाँ पे कैरियर सिग्नल था भेजने टाइम में कॉस ओमेगा सिटी, तो रिसीवर इन पे क्या लगाएंगे? सर इंटीग्रेटर लगाएंगे वहां पे। बहुत हूंगा मैं ये बोल रहा हूँ कि भेजने टाइम में मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करके भेजेंगे कॉस ओमेगा सिटी से कैरियर के साथ, तो रिसीवर इन पे डीमॉड्यूलेटर में कौन क्या कैरियर लगेगा, क्यों, कौन बताएगा? सर वहां पे भी कॉस ही लगेगा। कॉस ही लगेगा, वेरी गुड। क्यों? सर क्योंकि हमने खाली एम्पलीट्यूड हमारा मतलब चेंज हुआ है, मतलब कैरियर का फॉर्म तो वही रहेगा, मतलब 0 पे खाली ऑफ हुआ है, 1 पे हमारा सिग्नल है वहीं पे, लेकिन वो तो कॉस फॉर्म में ही है। म्यूट करो सबा मोहित, सबा मोहित, सबा बोलो, सबा अनम्यूट करो। यस सर, हम जनरेशन में पहले मैसेज सिग्नल लेते हैं और सर उसको वो हो गया, वो क्लियर हो गया ओके कि सर। कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करके भेजेंगे, रिसीवर एंड पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर फिर से आएगा, तो वहां पे कैरियर लगेगा, वहां पे कॉस ओमेगा सिटी था, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सर कॉस ही लगता है। हाँ क्यों लगेगा कॉस ही? सर क्योंकि सर सर क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड चेंज करवाना है ना, तो चेंज नहीं करवाना, जबरदस्ती नहीं चेंज करवाते हैं सर फ्रीक्वेंसी, सॉरी सर, तो सर चलो ठीक है। कौन कौन कमेंट करना चाहेगा? नीना वर्मा, नीना वर्मा। यस सर। हाँ कॉस ओमेगा सिटी वहां लगाया है, तो कॉस ओमेगा सिटी यहाँ पे भी क्यों लगाएंगे? सर क्वेश्चन रिपीट करना। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं सर। बेटा आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा है। एक मैसेज सिग्नल है, उसको मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं? सर आई गेस अगर फेज अनइफेक्टेड रहेगा हमारा उससे। फेज एक सर। मिनट रुक जाओ, फिर बताता हूँ। ओके सर। नीना को बोलने दो। कॉस ओमेगा सिटी, सॉरी, मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं बेटू?
नीना जी? यस सर। मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं? आवाज नहीं आ रही है। बंसिका कैसे करेंगे? कॉस ओमेगा सिटी एंड कॉस ओमेगा सिटी ही क्यों रखेंगे? सर क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें चाहिए होता है, तो कॉस्ट वाली टर्म्स जो होंगी वो हम विद इंटीग्रेशन करके हम म्यूट म्यूट। जीरो। आयुषी? यस सर। क्यों करेंगे कॉस ओमेगा दोनों तरफ कॉस? सर क्योंकि जो चीज हम मॉड्यूलेशन में करते हैं वो एग्जैक्ट हम डीमॉड्यूलेशन में करते हैं, इसलिए। चरित्र? सर जब हम डिमॉड्यूलेशन में एक तरफ हम हमारे पास ऐसे ही कॉस ओमेगा सिटी आ गया, तो हम उसको अगर हम फिर से कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा सिटी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा सिटी जो होता है फिर ब्रेक होके 1 + cos 2 ओमेगा सिटी हो जाता है। तो क्योंकि वो एक तरीके से फिर हाई फ्रीक्वेंसी रिमूव हो जाए और फिर हम मैसेज रिकवर हो जाएगा। तो हमारा काम डिमॉड्यूलेशन में सर यही होता है कि हमारा मैसेज रिकवर हो जाए, इसलिए। हमें सही रिलेशन है वो भी सही है, थोड़ा सा सही है। चरित्र बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल एनालिसिस इजी हो जाएगा, वो भी सही है, बट बेसिकली करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। हमेशा याद रखिए कि कैरियर जब सिंक्रोनाइज कब होगा कोई सिस्टम, जो मैसेज तो चेंज होना है क्योंकि आपने भेजा ट्रांसमीटर पर रिसीवर पे जाएगा तो चेंज होगा, बट कैरियर जब तक सेम नहीं रखेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। सो दोनों इन पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और यहाँ पे इसलिए रखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तबाह क्लियर हो गया क्यों करते हैं? यस सर, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए। yes, सर और सर हम उसमें भी लेते थे ना कि फॉर एग्जांपल जब अगर हमारा कॉस स्क्वायर आता था, वो तो बोल दिया हम उसको सर, लेकिन फिर वो अनवांटेड हम टर्म लेते हैं ना, और नॉइज वगैरह वो कैंसिल करने के लिए हम उस वाले दैट इज द मैथमेटिकल। बट यदि कभी भी लाइफ में ये लगे कि भाई लेता क्यों जा रहा है, क्यों ले सेम, जिससे कि क्योंकि दोनों तो ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल U1 2 ही है ना। यस सर, यस सर। यदि जो सिग्नल हम भेज रहे हैं उसी सिग्नल को तो रिसीव करना चाहेंगे ना, तो सेम पहले रखते हैं फॉर द सिंक्रोनाइजेशन पर्पस। और बाकी चीजें सब सही है कि मैथमेटिक्स में भी जी पड़ेगा, जो उसने चरित्र ने बताया, किसने बोला कि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं होगा, वो भी सही है। तो राइट डाउन हियर, तो हियर रूट EB सॉरी बिट स्ट्रीम BT, जो आप सिग्नल भेज रहे हो BT मल्टीप्लाई कर दो U1T से, √2/TB इंटू cos 2 pi fct, तो U1T और BT जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा AS के सिग्नल। सो राइट डाउन AS के सिग्नल, और जो ये बिट स्ट्रीम है तो ट्रांसमिट सिग्नल क्या होगा, एस के सिग्नल में क्या बनेगा बिटू, √EB इंटू √2/TB cos 2 pi fct, यही था ना U1T जो हमने पहले पढ़ा था। हाँ आयुषी यही पढ़ा था। यस सर। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या मिलेगा फाइनल, लेट अस अस्यूम बिट स्ट्रीम का एम्पलीट्यूड जो है वो √EB है। लेट अस अस्यूम दैट बिट स्ट्रीम जो आप भेज रहे हो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो √EB है, तो ये √EB 2 से मल्टीप्लाई होके तो ये बन जाएगा। यस सर, यस सर। तो लिख लीजिए ट्रांसमिटेड सिग्नल इज इक्वल टू √2EB/TB cos 2 pi fct, √2EB/TB cos 2 pi fct। ये ट्रांसमिटेड हो गया। रिसीव सिग्नल में, रिसीव सिग्नल कैसे करते हैं, ये हो गया जनरेशन। तो जनरेशन में बिट स्ट्रीम प्लस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लेते हैं इन एसके में, और जितने भी लोगे ना, जितना भी करेंगे हम देखना, अभी सब में आपको पता चल जाएगा, हमेशा याद रहेगा, फटाफट बोल दोगे किसी को। रिसीवर में याद रखना जो सिग्नल मैंने भेजा एस के सिग्नल वही आएगा, रिसीवर में वही आएगा। तो यहाँ एस के सिग्नल जा रहा है तो वही सिग्नल यहाँ आ रहा है, एस के सिग्नल जो यहाँ फेड हो रहा है, और सेम मैंने लिया सिंक्रोनाइजेशन के लिए U1T, तो U1T ले लिया। और बाकी उसके बाद लगाते हैं मैच फिल्टर। लिख लो, सबको लिख लो बेटा, मैच फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच फिल्टर बनता किससे है, तो मैच फिल्टर इज मेड अप विथ इंटीग्रेटर एंड डम्प स्विच। मैच फिल्टर इज अ कॉम्बिनेशन, किससे बनता है, ये देखो, ये पूरा जो है, पूरा जो बॉक्स है दैट इज द मैच फिल्टर, पूरा बॉक्स। और ये बनता कैसे है, इंटीग्रेटर, और ये जो स्विच है, ये स्विच है X1 वाला 0 to
ये वाला टाइम टी तक जाएगा, 0 to t टाइम पीरियड तक। तो x1 जब इसे टच हो जाएगा तो t टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ये जो ऑन हो जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं डम्प स्विच। लिख लीजिए, कभी मैच फिल्टर के बाद में कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैच फिल्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटर, पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर स्विचिंग लगाएंगे, स्विचिंग कंडीशन लगाएंगे, राइट। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। नाउ इसको अच्छे से यहाँ पे बनाया मैंने, ये चीजें तो बता दिया, अब इसको अच्छे से बनाया। सो एस के सिग्नल, एस के सिग्नल, चलिए तो यहाँ पे एस के सिग्नल क्या आएगा, वैल्यू बताओ। जो आपने बताया √2 cos 2 pi fct। √2 cos 2 pi fct। तो यहाँ पे आए, लिख लो, कंफ्यूजन मत करना। एस का सिग्नल इज √2 cos 2 pi fct u1t, और ये जाएगा किसमें, इंटीग्रेटर में जाएगा, और फिर डम्प स्विच से कंडीशन होगा, और उसके बाद लगता है डिसीजन डिवाइस। लिख लीजिए डिसीजन डिवाइस, उसका लगता है डिसीजन डिवाइस। और डिसीजन डिवाइस में एक थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हैं TH, वो होता है a/2, थ्रेशोल्ड वैल्यू इज a/2। यदि x1 का वैल्यू ग्रेटर देन a/2 हो जाए तो 1, यदि x1 का वैल्यू लेस देन a/2 हो जाए तो 0, 1 0, और यदि इक्वल हो जाए a/2 तो रैंडम सिग्नल। तो पहले सबसे पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले प्लॉट कर लीजिए, फिर मैं डिटेल बताता हूँ। पहले प्लॉट कर लेना। रोल नंबर 4, मैच फिल्टर किससे बनेगा बेटू, मैच फिल्टर इज a combination of integrator and switch। yes, integrator and switch, very good। so जब ये मैच फिल्टर में जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। यहाँ पे जब जाएगा उससे पहले ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा मुझे, पहले लिख लो अच्छे से। इसके सिग्नल मतलब कि √2 EV/TB into cos 2 pi fct मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 2 pi fct, मल्टीप्लाई कर दो तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे। सर √EB 2/TB cos 2 pi fct, 2 pi fct का स्क्वायर। हाँ ठीक है, और अंदर में जाके 0 to t से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, रिसीवर इन पे क्या मिलेगा, 0 to TB, लिख लो टाइम पीरियड TB है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 EB/TB इंटू cos 2 pi fct, स्क्वायर रूट ऑफ 2/TB cos 2 pi fct है या नहीं है। हाँ आयुषी, यस सर। हाँ इसको कैलकुलेट करो। तो क्या ये सही लिखा हूं मैं कि गलत लिखा हूं, पहले ये तो बताओ, पहले उसके बाद सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार दोबारा वो करो। तो बोलना चाहिए ना सर, पहले हो रही थी। यस सर। तो ये यहां तक दिख रहा था। यस सर, यस सर। अब हम मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, फरहा क्या आएगा बेटू, एट रिसीवर एंड पढ़ा, सबा। yes आंसर विल बी √EB। पक्का। नायरा, नायरा आवाज आ रही है। सबा मैंने भेजा क्या था, कौन सा सिग्नल भेजा था सर, एस की सिग्नल ली थी हमने। क्या नहीं भेजा था, क्या मैसेज क्या था आपका जो भेजा था आपने। सर u1 of t multiplied by as की सिग्नल। और पिटूंगा मैं, ध्यान देख लो भेजा क्या था मैंने, क्या है ये सर √of EB। यस सर। BT जो है BT स्टेप क्या भेजा था, √EB भेजा था। अब मिला क्या है यहाँ पे फाइनल, सर √EB मिला है। जो भेजा वो मिल गया। यस सर। यानी जो मैंने इंडिकेटर लगाया वो सही है। यस सर, यस सर।
सो जो आप भेजेंगे वही रिसीव करना चाहेंगे बेटो। ये सर जो हम मैसेज भेजते हैं हमें वही रिसीव भी होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड में भी कम और ज्यादा हो सकता था, इसमें नहीं दिख रहा है बट इट्स ओके। बट आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये एम्पलीट्यूड का बहुत वेरिएशन होता है, उसका नाम ही एम्पलीट्यूड ना मॉड्यूलेशन। बट यहाँ पे एएसके में जो मैंने भेजा चरित्र रूट ईबी भेजा, तो रूट एबी मैंने रिसीव किया, दिख रहा है बेटू? यस सर। ओके, सो एएसके इज कंप्लीट कि मैंने कैसे एएसके में जाओगे शुरू से तो कैसे 1-0 कैसे होता है, ऑर्थोगोनलिटी के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन था, क्या रिलेशन आया, बायोग्राम इसमें प्रोसीजर रूट ईबी आया, कॉन्फ्रेंसर डायग्राम खींचा, D1P निकाला, पॉलिटी एरर में क्वेश्चंस पुट अप कर दिया, सारे वैल्यू पुट अप करने के बाद पॉलिटी ऑफ एरर का फाइनल वैल्यू 1/2 ERFC उसका रूट ऑफ EB/4 नीटा आ गया। अब उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो हम एक तरफ जनरेटर लगाते हैं, एक बार डिटेक्शन लगाते हैं। तो जनरेशन में हम ये लगाया प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट सेम U1T बिकॉज सिंगुलराइजेशन चाहिए। बीच में एक हमेशा रखना, कभी भी डिजिटल मॉड्यूलेशन को रिसीव करने के लिए एक फिल्टर चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर ने तो लीव करी क्लास। क्या पता फिर से ज्वाइन करें। में भी लाइट ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके यहाँ पे पावर इशू ज्यादा हो जाता है। क्लास कितने बजे तक थी? 3:30 2:30 to टाइम 3:30 तो आई ऐसे भी गेस। हो ही गया। आवाज आ रही है मेरी बेटा आप लोग को? यस यस सर। सर। लाइट चली गई थी यहाँ पे। सो कभी भी आपको लाइफ टाइम में कभी भी बोला जाए कि डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो डिटेक्शन ऑलवेज मेड अप विद द फिल्टर, और कौन सा? मैच फिल्टर। और मैच फिल्टर के बारे में हम कितना कुछ पढ़ते हैं, इतना कम्प्लेक्स कर देते हैं। मैच फिल्टर इसका दो ही कंपोनेंट है, एक इंडिकेटर एंड डम्प स्विच। मैच फिल्टर मैं बढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस बताऊंगा, बट कभी भी चीज को कम्प्लेक्स करने से अच्छा नहीं हो जाएगा, राइट? तो हमने क्या कुछ नहीं किया, इंडिकेटर जो वैल्यू आया यहाँ पे एएसके का सिग्नल, और उसको मैंने U1T से मल्टीप्लाई करके फेड कर दिया इंडिकेटर में, और जो वैल्यू आया मैंने देख लिया। और फाइनली ये जो वैल्यू आएगी वो जाएगा डिसीजन डिवाइस में। डिसीजन डिवाइस में यदि वैल्यू ग्रेटर देन A/2 है तो 1, लेस देन A/2 है तो 0, और एग्जैक्टली A/2 है तो रैंडम वैल्यू हमें मिलेगी, राइट? नाउ दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशंस कि रूट ईबी भेजा था, रूट ईबी मिला। फाइनल इज पैटर्न एनालिसिस। सो पैटर्न एनालिसिस प्लीज आपको खुद बनाने हैं, मैं तो आपको चलिए आपको खुद बनाना है। ये ले लीजिए 1 0 0 1 0 1 0। इसके लिए आप एएसके का पैटर्न एनालिसिस बनाइए। 1 1 0 0 1 0 1 0। ये आप कल बना के रखिएगा। मैं कल के नेक्स्ट सर क्लास में एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ये पैटर्न एनालिसिस है। कोई सिग्नल है ईबी, रूट ईबी, ठीक है यस बेटू? सर। वो है वैल्यू है उसका, ये है 1 1 दिख रहा है ना बेटू, लंबे पीरियड तक दिख रहा है। सर, इसके सर लिए हमें कुछ नहीं शो हो रहा है। नो सर। एक मिनट स्क्रीन करता हूँ पहले, सॉरी पहले तो स्क्रीन दिखना है ना। अब दिख रहा है?
सबा दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। भी नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर अब दिख रहा है। यस सर। सो एट रिसीवर इन रूट ईबी सेम एम्पलीट्यूड का मिल गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं पैटर्न एनालिसिस बनाने के लिए। तो पैटर्न एनालिसिस में इसका लिख लो बेटू, रूट ईबी का सिग्नल है बीटी, ये है 1 1 है ना बेटा, 2 पीरियड तक के लिए 1 1, बीच में है 0 0, फिर है 1 0 1 0, और होगा कौन सा मुझे कौन सा सिग्नल है? ये मैसेज सिग्नल है, और ये कौन सा सिग्नल होगा? चरित्र चरित्र। यस सर। आवाज क्या रही है क्या? नो सर, कट के आ रही है आवाज, क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। सिर्फ आवाज आ रही है क्या मेरा? नो सर, क्लियर नहीं आ रही सर, एक मिनट। अच्छा, ओके ओके। सो आयुषी दिख रहा है क्या मेरा ये? यस सर। अच्छा, हमारा वो नेटवर्क स्लो है ना, इसलिए सर एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस सर। हाँ, बीच में हमारा नेटवर्क कमजोर था शायद बेटा, अभी मैं मोबाइल से चला रहा था। अब ठीक है। सो ये स्क्रीन अब दिख रहा है स्क्रीन, तो बता देना मुझे फाइनल। यस इट्स विजिबल। सो 1 1 0 0 1 0 1 0, ये दिख रहा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल। सबा, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, राइट? यस सर। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ये देखो, ये कैरियर सिग्नल, कैरियर के साथ। यस, इसका -a to +a एम्पलीट्यूड है इसको। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? सर एएस की वेव फॉर्म। हाँ, एएसके का वेव फॉर्म प्लेट कीजिए प्लीज। सर 1 के लिए वो कंडक्ट करेगा, 0 के लिए हम नहीं लेंगे। यस, तो जो वेव फॉर्म है फाइनल कैसा बनेगा? फाइनल ये बनेगा। बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नीचे हमेशा नीचे से ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये 1 फिर 0 0 पूरा, फिर जब स्टार्ट होता है तो ऊपर से, क्लोज होता है तो नीचे से, फिर ऊपर से, क्लोज हुआ नीचे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है? क्योंकि इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर, है ना? ये बहुत अच्छे से, आप यदि इसको क्लोज ऊपर से कर देंगे तो गलत हो जाएगा बेटा, राइट? तो ध्यान रखिए, क्लोज हर में नीचे से हो रहा है, राइट? और स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, राइट? सो दिस इज द 1 0 1 0। तो किसी ने बोला था कि सर इसको 1 0 मॉड्यूलेशन, मतलब इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं और ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर मॉड्यूलेशन 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1, राइट? सो दिस इज द पैटर्न एनालिसिस ऑफ ASK सिग्नल। ASK तो बहुत इजी है पैटर्न एनालिसिस, बट हम आगे का जो मॉड्यूलेशन का देखेंगे पैटर्न, दैट इज समहाउ सम कॉम्प्लेक्स। सो होपफुली आज मेरा मेन एजेंडा था कि आपको फोकस करना है कि नहीं, हम भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा कि ASK का जो एनालिसिस है, जब ASK आ गया ना तो आगे सब BPSK QPSK सब बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइट? तो ASK तक का जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे मेल कर दीजिए आप लोग, तो मुझे याद आ जाएगा, सो दैट आई कैन सेंड द सम इंफॉर्मेशन टू यू। कुछ जितने भी ग्राम प्रोड्यूसर के रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिएगा आप, ASK तक आप पहुंच जाइए। फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन। हमारे एग्जाम्स भी आ रहे होंगे ना सर, आप हमें उस रिलेटेड भी बता दीजिए। नहीं, अभी एग्जाम आपके नहीं होंगे अभी एग्जाम। सर लाइक जब भी आएंगे सर, एटलीस्ट अगर आप हमें एक ओवरव्यू मटेरियल का देंगे तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। सर ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई बुक बता दीजिए सर, वो मैं PDF डाउनलोड करके। ओनली साइमन हाइकिंस अभी
सर एक बीपी लाठी करके भी आती है सर बुक शायद, उससे हाँ, भी कर सकते हैं लेकिन देखा होगा, चलिए तुमने गेट का प्रिपरेशन किया होगा, AM, FM, TDM, ये सब बहुत अच्छे से देगा। जैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन पे आएगा सब धीरे धीरे गायब होते जाते हैं, देखा होगा आपने। पूरा डिजिटल मॉड्यूलेशन आपका जो 2 पेज में खत्म कर देते हैं, देखा है कि नहीं देखा? यस तो सर। वो मटेरियल्स थोड़े कम मिलेंगे आपको, बट हाँ साइमन हाइकिन्स बहुत अच्छा है, मैंने बताया था आपके लेक्चर्स में। और मैं आज मुझे मेल कर दीजिए सो दैट मुझे याद आ जाएगा, तो वीकेंड पे आपको हम अपना मटेरियल भी भेजेंगे जो हमारे पास है। ओके, और सिर्फ याद रखिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने माइंड का यूज करना है, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को लेके चलना है। ओके, साइमन हैकिंग लाइब्रेरी वाली बुक से डाउनलोड कर सकते हैं जो? हाँ कर सकते हैं, हम भेज भी देंगे आपको, मेल कर देंगे हम, अनऑफिशियल मेल आईडी से आपको मेल कर देंगे, ठीक है? ओके सवा फरा, ठीक है सवा, आज का खत्म करता हूँ लेक्चर में। ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट। सो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट, हु इज एब्सेंट? रोल नंबर 16 हो आज प्रेजेंट? रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, एक मिनट। और प्लीज सिर्फ ये सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, रिसर्च के बारे में भी डिस्कस करना है अब आगे से, ठीक है? जैसे कि पढ़ाई तो बहुत कर लिया आपने, लेकिन आउटपुट भी आना चाहिए उसका। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।